No problem. I will let you know. So that is 107 ka square, right? Yes, sir. So what you can write, you can 100 plus 7 square. Can you write that? Yes, sir. So a square plus 2ab plus b square. Can you see that? Yes, sir. So this becomes 4 zeros. ये कितना हो जाएगा? 1400 plus 49. Right? Yes, sir. So if you see here, this becomes 49 and this becomes 1, 4 and 1. Can you see that? Yes, sir. Pick the answer. Is it that? Yes, sir. 11449. तो आपको कैसे गलती हो रही है? So, चलो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो और ध्यान से थोड़ा किया करो, ठीक है? yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए. Sir, that's it. Nothing else. बस एक सिंगल? Yes, sir. अच्छा, और लाइंस एंड एंगल्स में नहीं बनाया कुछ आपने? Sir, I did the first exercise, questions. I didn't Okay. have doubt in them. So in the first exercise, you don't have any doubt. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so I'm going to ask you one problem. Just do it and solve it right now. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yeah, just giving you. So uploading. Can you see the question now? Two complementary angles are in the ratio 4 by 5. Yes, sir, I do. Please solve it right now. Yes, sir, done. Okay. So how much you got the answer? Tell me. Sir, x is equal to 10 degrees. So angle 4x is equal to 40 degrees and angle 5x is equal to 50 degrees. Okay, perfect, perfect. Okay. ठीक है तो ओके लास्ट क्लास में कल मैंने इन द सेंस लास्ट सेशन व्हाट आई हैव टॉट यू. Sir, you taught me complementary angles, ओके. supplementary angles. ओके. So you taught me types of angles, interior, exterior, and ओके एंगल बाइसेक्टर हैव आई टॉट यू. yes, sir, you taught me angle bisector. एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? Sir, it is a it's a it's a ray which cuts the angle into half. Yes, which cuts the angle into Half. half. Okay, that's great. Okay, now in today's class we will see something new. Okay, Yes, sir. so it's very easy, so no need to worry about it. So just look into here. Give me a moment. Can you see this line? Yes, sir. Okay. So this line I will write down as AB. And here I am taking one point as a O. Okay. Yes, sir. So on the O point, what I will do, can you see this? Yes, sir. So by using the ray, I'm dividing this AOB into how many parts? Into two parts, right? Yes, sir. And I'm saying that this is the A and this is what? B. B. So here A and B are known as linear pair. What it is known as? Yes, sir.
A and B are known as what? Linear pair. Are linear pair. देखो एक तो straight line मैंने बताया था आपको याद होगा, right? Yes, sir. So a straight line makes what? If I add them together, they makes 180 degree. इस बात को याद रखना, right? Yes, sir. Now on this line, you can see I'm going to draw many things. Can you see this? Yes, sir. Now on this line, if you see here, what I have done, I have divided it into 3 parts. Am I saying equal part? No. No, sir. So remember that always, how many angles are there does not matter. How many angles I have taken, that does, I think I can take 5, 6, 7, 10, doesn't matter. But the straight line, that means if I say here, I will use my green pen to represent this angle is making a straight line, right? Yes, sir. So sum of the angles which makes this straight line always gives you how much? 180 degrees. Degree. So please make a figure and make a note of it. Yes, sir. कहने का मतलब कितनी भी रेज हो, स्ट्रेट लाइन जो है ऑलवेज वो 180 डिग्री बनाएगा. Yes, sir. जल्दी से नोट कर लीजिए. Yes, sir. Yes, sir. Is it done? Yes, sir. Okay, that's perfect. Just give me a second. Now, another theorem says that, I'm just uploading, so you will get to know better. Give me a moment. Uploading here. Can you see these two lines? Yes, sir. They are crossing at where? They're crossing at the point. Sir, midpoint. Oh. Oh, midpoint नहीं, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो. Yes, sir. Right. So यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. So आप देखो AC से they makes angle something here. Can you see that? Yes, sir. And they are making the angles here also. Can you see that? Yes, sir. So they are what? They are the opposite angles. Yes, sir. So always remember opposite angles. Vertical, जब इस तरह से कुछ lines draw करते हैं, so opposite angles must be always equal. Understand? Yes, sir. And this angle and this angle will be equal. So suppose that if I am saying that this is 50 degree, so this will become also 50, right? Yes, sir. अच्छा एक चीज और देखो, ये 50-50 तो बना दिया. अब यहाँ पर आप देखोगे, so this makes 180 due to the straight line. Yes, sir. So this portion, that means if I draw the black color here, so this makes what? This makes 130. Yes, sir. So the opposite angle would be also 130. So draw it fast. Give me a second. Shrin, can you hear me? Yes, sir. Yeah. आप एक काम करो. अच्छा आपके पास आज टाइम है ना थोड़ा सा आफ्टर द 5? Yes, sir. हाँ ठीक है चलो. ओके कोई नहीं, तो आप एक काम करो, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. यू कैन जस्ट डू इट. एक्चुअली मेरे घर पे इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, सो मैंने एक इंटरनेट वाले को बुला रखा है. ओके, Sir. सो आई विल बी रिटर्न इन 2 to 3 minutes. Yes, sir. तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू गिव यू. Yes, sir. कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir. I can. Yeah, you can just solve. I will be written by 2 to 3 minutes. Okay. Yes. And don't worry, we will extend our class. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Give me.
Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Okay, so is it done? Yes, sir. Okay, so what is the value of x? You got it? Sir, 45 degrees. 45. So angle AOC will become here? So 40 degrees. नहीं, x अगर 45 है तो AOC 40 कैसे हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना? This one. AOC कहने का मतलब this Oh, angle. sorry, AOC, sir, is 45 degrees. Right. And what about this part? Sir, BOD? BOD 70 degrees. BOD will become here 70 degrees. Okay, good. Giving you the question. Give me a moment. So ये आपने जब कर लिया, so we can do one more practice here. Give me a second.
Okay, giving you one more problem here, and you can do this. Yeah. Acha, one complete circle makes how much? Sir, 360 degrees. 360 degree. Good, perfect. Okay. जरा इसको करो पहले अभी. Yes, sir. Done. Sir, 1 minute. Done. Yes, sir. How much you got? Sir, x is equal to 32 degrees. 32. Okay, let me do for you. Let me check out. So 3x plus 7 plus 2x minus 19 plus x is equals to 180, right? Yes, sir. So 2 plus, this becomes 6x, and 19 minus 7 gives me how much? Minus 12, right? Yes, sir. Minus 1. Is equals to 180. So 6x is equals to, this becomes 192. So x becomes 192 divided by 6 will make 32 degree. Now they're asking what? Sir, Uh, AOC. We have to find the values of all of them. AOC, right? Yes, sir. So AOC means 3x plus 7, which makes 3 times 32 plus 7, right? Yes, sir. So it becomes how much? 32 times 3, 96, plus 7, which Nine- makes 103, right? Yes, sir. And COD, you can say Sir, 2x 2x minus minus 19. 19. So 2 times 32 minus 19. So this becomes 64 minus 19. So which becomes how 45. much? 45 degrees. Okay, 45 degrees. Okay, fine. That's great. And BOD is already 32 degrees, right? Yes, sir. Okay, good. Perfect. And then the last x is equal to 32 degrees. Yeah, right. Correct. Okay. Giving you one more problem. Try Yes. this one. Floating. Okay. Can you see the problem? Yes, sir. In this problem, what they have told, they told that x, y, z in the ratio. So what you can do, x can be 5a, Yes, sir. y can be 4a, and z can be 6a.
Yes, sir. They have given me the ratio. I can write in this format, right? Yes, sir. Just give me a second. So try it. I will be back in a minute. Okay. Yes, sir. Yeah. Done, sir. Sir. Yeah, Shrin, can you hear me? Yes, sir. Yeah, I'm extremely sorry. And no need to worry, we will extend our class. Yes, sir. Yes, Actually, sir. क्या हुआ है कि जो इंटरनेट मेरे घर पे जो चल रहा था वो सही नहीं चल रहा, तो मैंने दूसरे इंटरनेट वाले को बुलाया है, वो अभी जस्ट आ गया. Yes, sir. It's fine. So he is doing work in my house also. So Yes, that's sir. why I have to see him also. Yes, sir. Okay. So ठीक I है. finished. यहाँ क्या आया बताओ? What is the answer? Sir, my final x is equal to 60 degrees. हम्म. So my final answer is a is equal to 60 degrees. एक मिनट, 15 और 180, एक सेकेंड. 180 डिवाइड बाय 15, 12. आपको a की वैल्यू क्या आ गई? Sir,
60 degrees. नहीं, a की वैल्यू 60 डिग्री कैसे हो जाएगी? So you can see here, if I add them together, x plus y plus z, it will give me 180. Yes, sir. So 5a plus 4a plus 6a is equals to 180. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? This will become 15a is equals to 180. Yes, sir. So अच्छा, आप x की वैल्यू बता रहे हो क्या मुझे? Yes, sir. 60 degrees. अच्छा, x की वैल्यू 60 डिग्री, ओके, मुझे लगा a की वैल्यू 60 डिग्री बोल रहे हो, ओके। No, नहीं, sir. हाँ ठीक है, ये 15 हो गया, ये सॉरी, ये 12 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. 12, ओके, चलो ये कितना हो जाएगा? Um, 4 times, sir, that's 48 degrees. so 48 degrees and 6a, 72 degrees. good, perfect, 72 degrees, good, it's okay, okay, चलो ये कर लिया। एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूँ, give me a moment, yes, this is good, just hold a second. Yes, sir. Yes. अच्छा, आप जरा चेक करोगे अपने RS अग्रवाल में, आपका एक्सरसाइज कौन सा है ये, लाइन्स एंड एंगल्स? Yes, sir. 1 minute. क्योंकि न्यू बुक में ये है 7, मेरे बुक में है 4। Sir, lines and angles is chapter 7. चैप्टर 7 है, ओके ओके, ठीक है, चलो फिर मैं समझ गया, आपकी नई बुक है, ओके। तो आप ना 7A कंप्लीट हो चुका है, राइट? Yes, sir. आप 7B कंप्लीट करने के लिए होमवर्क नोट कर लो, Yes, sir. ओके। और आप 7B, आज हम 7C भी कर लेंगे, चलो ठीक है, 7C जब मैं टच करूंगा तब बताऊंगा। Yes, sir. 7B तो नोट कर लो होमवर्क में, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो ठीक है, आ जाओ इधर। इसमें जो है, can you see this? Yes, sir. So what you can see, बहुत आसान है, कैसे करोगे? Yes, sir. Um, Tell me, देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, yes, sir. Yes, sir. सो So the linear pair. लीनियर पेयर तो बनाएगा, ये क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट, Yes, sir. 50 degrees. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम हियर 50 डिग्री, Yes, sir. और ये 50 है, और ये इसके साथ कितना बनाएगा? 180 बनाएगा, 130 degrees. तो यहाँ पे ये 130 हो गया, गुड। सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 130 आल्सो 130, ऑल डन, Yes, sir. ओके, ठीक है। चलो एक सबसे मजेदार क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. गिव मी अ मोमेंट, अपलोडिंग। ये इस एक्सरसाइज का मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ फिगर, या कैन यू सी? Yes, sir. ओके, रीड द प्रॉब्लम easily. In the adjoining figure 3 coplanar lines A, B, C, D. कोप्लेनर लाइन मतलब क्या होता है? Um, बोलो। sir, coplanar lines are which makes, एक दूसरे को कट करते हुए एक पॉइंट बनाते हैं। yes, sir. They are known as, चाहे कितनी भी लाइंस हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट बनाएंगे, राइट? Yes, sir. तो दे आर नोन एज कोप्लानर। Yes, sir. चलो तो देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, कैन यू सी? Yes, sir. लाइन A, B, C, D and E, F, these are the lines which makes coplanar at O, मतलब O पे कट करते हैं, राइट? Yes, sir. अब कहता है जी कि X, Y, Z and T, T भी है, देखो यहाँ पे T भी आ गया, कहाँ से पता Yes, नहीं, घूमते फिरते आ गया है, चलो कोई नहीं। तो ये T की वैल्यू भी बतानी है, राइट? yes, sir. अब चलो देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। कैन यू सी माय दिस Yes, sir. Yellow. line and another line, can you see that? Yes, sir. तो अगर ये दोनों लाइन आपको दिखा तो this angle will be equals to this angle. Yes, sir. Why? Sir, because vertically opposite. Vertically opposite, good. So can I write down here T is equals to 90? Yes, sir. Okay, now can you tell me this green angle, can you see that? Yes, sir. ग्रीन वाला मतलब जेड एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? Sir, 50 degrees. क्यों? Vertically opposite, sir. Good, it will become vertically opposite. And what about the x?
x will be equals to y and due to vertically opposite, right? Yes sir, yes sir, अब vertical. हमें x और y भी निकालना है. चलो कोई Sir, बात नहीं. ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है. कैन यू सी yes sir, दैट? sir, it will be 40 degrees. कौन सा? X and Y. Right. X and y will become 40. How? Sir, because it's 180 degrees, so 180 minus 110. करेक्ट. गुड. यस, आप वैसे भी कर सकते थे और आप चाहो तो आप ये वाला भी लाइन ले सकते थे. कैन यू सी दैट? Yes sir, yes sir, तो यहाँ से x प्लस 50 प्लस 90 मेक्स 180. yes sir. गुड. परफेक्ट. गुड. अच्छी बात है. अच्छी शुरुआत रही यहाँ पे. Yes. और अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये देखो ये लगा यहाँ बाउंड्री के पास. चलो इसको सॉल्व करो. In the adjoining three coplanar lines A, B, C, D, and E, F intersect at point O. Find the value of x. Hence, find AOD, COE, and AOE. Yes, sir. क्या हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? No, sir, I'm solving this one. ओके. Done, sir. Okay. Fine. So what is the answer? Sir, x is equal to 18 degrees. Okay. X is equal to 18 degrees. So AOD is equal to 36 degrees. एक मिनट 5 5 10 18. ठीक है. गुड. ओके. चलो हो जाएगा. समझ गया मैं आपने क्या किया है. ओके, आई अंडरस्टूड. ओके चलो अब हम देखो, आपको मैंने अभी तक सिखाया इस चैप्टर में, एक तो लाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट? Yes, sir. दूसरी चीज की स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री, राइट? उसके बाद मैंने Yes, sir. लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, अब इस चैप्टर का मतलब लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का बहुत बेहतरीन चीज अभी हम सीखने जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अब हमारा टॉपिक क्या है? Parallel. Parallel lines and transversal
उसके बारे में अभी हम सीखेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो मालूम है कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में आपको? Sir, parallel lines, they're lines which don't intersect. Okay, can you give me a real life example? Sir, Yeah, anything? railway tracks. Yes, railway tracks are the real life example of it, right? Yes, sir. Because the railway tracks never meets. अब आप बोलोगे कि सर वो तो कभी कभी देखते हैं मीट हो जाती है, नहीं, लेकिन देखा है ट्रेन के पहिए कभी मीट नहीं होते उसमें, right? Okay, now you can see these two things I have taken as a parallel line. Can you see that? Yes, sir. अच्छा, पैरेलल बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट? Yes, sir. इसको शॉर्टकट में कैन वी राइट लाइक दिस? डू यू नो Yes, दिस? sir. डू यू नो दिस सिंबल का मतलब क्या हुआ जो That's स्टेटमेंट a में? parallel to. यस, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इज पैरेलल टू, ये जो सिंबल मैंने दो लाइन ऐसे ड्रॉ किए ना बीच नीचे, सो अगर मैंने उतना भी लिख दिया दैट मींस आई एम सेइंग ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इन दिस आप देखो ये एक लाइन जा रही है एल एम, कैन यू सी दैट? Yes, sir. So LM is a transverse. LM line is what? Transverse Transversal. or transversal you can say. मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, Yes, sir. ये एक लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, हाँ, लाइन बनता क्यों नहीं है मेरे से? गिव मी अ सेकंड। Okay, this is my another line. This is my another Yes, line. sir. AB and this is LM. Is this LM is transversal here? Yes, sir. How? Sir, because it intersects a line. No. At here, LM is not a transversal. Why? Because it intersect only one line. Only one line. Yes, sir. Have I said that AB is parallel? Have No, I sir. said AB is parallel? I have not said the AB is parallel to anyone. ट्रांसवर्सल तभी होता है जब हमारे को एक पैरेलल लाइन, जब हमारे पैरेलल लाइंस को कोई दूसरा लाइन कट करके जाता है, तब हम कहते हैं कि यस LM इज अ ट्रांसवर्स। डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. तो अगर एक लाइन सिर्फ रहेगा, सो वी कैन से LM इज नॉट अ ट्रांसवर्स। वहां पर क्या हो जाएगा रूल? अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, मेरे से हटेगा ये? गिव मी अ सेकंड प्लीज, लेट मी चेक आउट। नहीं हटेगा, ओके, सो ओके आई विल डू वन थिंग, ओके, so now it's removed, right? Yes, So sir. you can see, so here what we can say, they are two lines intersecting each other, just Yes. simple, right? क्लियर है कि एक ट्रांसवर्स कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है तो मुझे No, बताइए। sir. चलो यहां तक फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से, और ये ऊपर स्टेटमेंट जो है वो भी लिख लो, आप जल्दी से नोट करो। Yes.
हो गया? Okay, 1 minute drawing. ओके, Yes, sir. Done. ओके। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो Yes, sir. प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जहां समझ नहीं आए वहीं स्टॉप करके पूछ लीजिएगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे वापस बताइए, ठीक है? Yes, sir. ओके, फाइन, गिव मी मोमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं नंबरिंग करने जा रहा हूँ, 1 2 3 4। ये मैंने एंगल्स के नेमिंग कर दिया, मतलब ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 एंगल 4 है, ठीक है? Yes, sir. ये है हमारा पॉइंट P पर, हमने क्या पॉइंट माना इसको? P। P. Yes, और sir. ये पॉइंट हमने मान लिया Q। Q पर ये एंगल 5 हो जाएगा, ये एंगल 6 हो जाएगा, ये एंगल 7 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम एज अ एंगल 8। ये सब मैंने अपनी तरफ से नेमिंग दी है, ऐसा नहीं किसी बुक ने बोला है करने को। आई हैव गिवन फॉर माई सेल्फ फॉर इजीनेस, ठीक है? सो आप इसको नोट कर लो नंबरिंग को। Yes. कर लिया? Yes, sir. ओके, चलो शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. ओके, अब मैं एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है? Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? Vertically. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके? Yes, sir. अब एक बात बताओ, पॉइंट P पर अगर हम देखें, so angle 1 is equals to angle 3 by opposite angles. Yes, sir. Can I write this? Yes, sir. And angle 2 will be equals to angle 4. Yes, sir. Similarly, at the point Q, angle 5 will be equals to which one? Um, Angle 7. 7. And angle 6 will be equals to angle 8. Yes, sir. So आप इसको नोट करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण ये रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। नोट इट डाउन। वर्टिकली अपोजिट एंगल से कौन कौन सा रिलेशनशिप है? 1 is equals to 3, 2 is 3. equals to 4, 5 will be equals to 7 and 6 is equals to 8। क्यों हम ये करने जा रहे हैं? I will explain to you, don't worry। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस आप लिखते जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि इसके कौन किसके इक्वल होगा ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है। हो गया? Yes, sir. अच्छा, दूसरा एक वर्ड होता है corresponding angle। क्या होता है? Corresponding Corresponding angle। Corresponding angle is which angle? Those angle which looks like same, which looks like same. same, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है? So can you see here at the point P, angle 1 looks like which angle at the point Q? एंगल 1 जो है Yes, sir. पॉइंट Q पर किस एंगल के जैसा Sir, दिखता है? 7. 7 के जैसा दिखेगा कि 5 के जैसा दिखेगा? Sir, 5, 5, 5. सेम साइड सेम तरफ, राइट? सो Yes, कैन आई राइट डाउन हियर कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से हो जाएंगे? yes, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5, राइट? yes, sir. सिमिलरली एंगल 2 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। नीचे में है, नीचे Yes, में sir. है। और एंगल 4 किसके इक्वल दिखेगा हमें? 8 के।
और एंगल 3 किसके इक्वल दिखेगा? 7 के। Yes, sir. इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. चलो इसको नोट कर लो फटाफट कि कौन कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से कहे जाएंगे। सो 1 विल बी इक्वल्स टू 5, 2 विल बी इक्वल्स टू 6, 4 विल बी इक्वल्स टू 8। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक चीज दिखा देता हूँ, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये Yes, 4 दिख रहा है, yes, sir. Yes, sir. I can see it. 4 की जगह पे 8 देखो नीचे सेम तरफ दिख रहा है। सो दे आर Yes, व्हाट? दे आर कोरस्पॉन्डिंग, एक corresponding जैसा angle. दिखता है। 2 नीचे में है तो यहाँ भी 2 6 नीचे में है, so Yes, they sir. are corresponding। 3 यहाँ नीचे है, so 7 यहाँ नीचे है, so they are corresponding। तो याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं याद करने बस लिख लो कि ये corresponding नेम कहते हैं जी। कोई दिक्कत? No, sir. चलो ठीक है। हम ये सारी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें एंगल्स निकालने में दिक्कत ना हो। क्या निकालने में दिक्कत नहीं हो? एंगल्स निकालने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें सारा ये तामझाम जो ये है ना इसमें Yes, sir. सीख रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन इसके बाद बताऊंगा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं इसमें? Parallel lines, sir. A, B, and C, D. ए बी सी डी के अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल हैं? अंदर की तरफ। अच्छा अंदर बाहर नहीं पता आपको, ठीक है चलो बताता हूँ। ये लाइन है, हेलो, Yes, sir. और Yes, sir. ये लाइन है। Yes, sir. इन दोनों के बी, ये सब लो नदी है हमारी, क्या है ये नदी की लाइन जा रही है, तो नदी के Yes, अंदर कौन होगा? ये नदी का अंदर का पोर्शन हो जाएगा ना। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब So, समझ में आया नदी के अंदर का पोर्शन? तो अब नदी के अंदर में कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं आपको? sir, 4, 4 बाहर दिख रहा है नदी के, uh, नदी के अंदर बताओ। 3 2, and 2. 8 एंड 5 ये नदी के अंदर है। Yes, sir. 3, 2, 8, and 5. अच्छा नदी पे पुल बना दो एक जल्दी से, तो ये पीक्यू पुल बन जाएगा नदी के ऊपर पार Yes, करने के लिए। देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये नदी है हमारी, yes, sir. नदी के ऊपर पीक्यू पुल बना दिया हमने। Yes, sir. अब पुल के अपोजिट साइड कौन से एंगल्स हैं? 3 and 5, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और इधर कौन कौन से एंगल्स हैं? 2 and 8। Yes, sir. Yes, sir. 2 and 8. तो इनको कहते हैं 3 and 5 को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 3 is equals to 5 and 2 is equals to 8। they are known as alternate। alternate क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है, राइट? Yes, sir. इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे इसको हम? Interior. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। ये लोग देखो 3 और 5 अपोजिट में है, Yes, sir. तो ये दोनों अल्टरनेट हैं, राइट? Yes, sir. और ये पैरेलल लाइन के अंदर हैं, इसलिए इंटीरियर कहे जाते हैं। 2 and 8 also they are opposite direction, right? So we can say it alternate or they are inside the parallel line, so it is known as interior angle। is that clear? Yes, sir. तो जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ इंटीरियर में सेम साइड वाले कौन से एंगल्स हैं? तो ये 2 और 5 सेम साइड है, कैन यू सी? Yes, sir. 2 and 5. Yes, sir. सो ऑलवेज याद रख। अच्छा और ये 3 और 8 सेम साइड है, Yes, sir. They're on the same side. तो याद रखना कि जो सेम साइड इंटीरियर होते हैं उनको ऐड कर देंगे तो वो 180 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 180. 180 बनाएंगे। इन दोनों को नोट कर लो। अब कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, जल्दी sir. से नोट करो। तो मैंने इसमें 4 बातें सिखाई। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हैं, और इंटीरियर सेम साइड वाले कौन से हैं, राइट? Yes, sir. एंड व्हाट आर देयर रिलेशनशिप, आई हैव टोल्ड यू, करेक्ट? Yes, sir. सो इसको याद रख लेना, ठीक है? याद में आपको बस एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर सेम साइड वाला ही करना पड़ेगा, बाद बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। Yes, sir. नोट हो जाए तो बताओ, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ।
डन? Yes, sir. ओके फाइन। ओके चलो, तो एक काम करो, जो भी चीजें अभी सिखाई मैंने एक बार जल्दी से पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो जल्दी से, लाउड, डू इट लाउड। Sorry, sir, I can't hear. I'm saying read it, whatever you have written, read it loud. Yes, sir. Um, Yeah, what happened? Sir, I've written everything on the slide. Okay. Okay, चलो स्लाइड मतलब समझा नहीं मैं। So this, everything on the हाँ, तो screen. इसको पढ़ लो ना एक बार, क्या लिखा है। Oh, yes, sir. So corresponding angles are angle 1. Equal corresponding angles are angle 1 and angle 5. Then angle 2 and angle 6. Good. Then angle 4 and angle 8. And angle 3 and angle 7. Okay, and vertical opposite angles? The vertically opposite angles are 1 is equal to angle 1 and angle 3. Angle 2 and angle 4. Angle 5 and angle 7. Okay. Angle 6 and angle 8. Okay, and alternate interior कौन-कौन है यहाँ? There angle 3 and angle 5. Good. And angle 2 and angle 8. And interior same side क्या बनाता है? Sir, angle 2 and angle 5 makes 180, right? 180. Yes, sir. And angle 3 plus 8 makes 180. 180. अच्छा, Yes. ये सारी चीजें तो मैंने सिखाई। एक अपने दिमाग से ये चीज ध्यान में रखना कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। Yes, sir. यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन बनाता है। Yes, sir. तो हम 5 और 6 को भी ऐड कर देंगे तो 180 मिल सकता है हमें, राइट? Yes, sir. ये तो पहले भी पढ़ रखा है आपने, इसलिए मैंने उसी बताई नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब चलो, अब इसका सबसे सिंपल प्रॉब्लम हम देखते हैं। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? In the adjoining figure, AB is parallel to CD and are cut by transversal E at and are cut by transversal T at E and F respectively. If angle 1 is equal to 70 degrees, find the measure of each of the remaining marked angles. तो इसमें देखो, इसमें कह दिया कि एंगल 1 जो है वो कितना है? 70, राइट? Yes, sir. तो चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वेट, 2 3 4 5 6 7 और एंगल 8, यही निकालना है ना हमें? Yes, sir. अब एक बात बताओ, एंगल 170 है तो जल्दी जल्दी करेंगे, जस्ट उल्टा देखो कौन है? Sir, 3. तो कितना हो जाएगा 3? 70 degrees. गुड। अब एक बात बताओ, ये वाला कितना बनाएगा? 180. So 180 minus 70. गुड गुड। 110 degrees. सो एंगल 4 हो जाएगा जी हमारा 110। तो एंगल इसका उल्टा कौन है? Sir, angle 4. एंगल 4 का उल्टा कौन है? 2 ना? 2. तो 2 भी 110 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा चलो गुड, यहां तक कर लिया, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, एंगल 1 और एंगल 5 में कुछ रिलेशन है क्या? Angle 1, angle 5. दे लुक्स लाइक सेम। Sir? दे लुक्स लाइक सेम corresponding angles। Yes, sir, they're corresponding angles. ये देखो, एक ही तरफ एक जैसा दिख रहा है। Yes, sir. तो corresponding क्या होता है बता देता हूं मैं। ये देखो, ये पैरेलल हो गया और ये लाइन खींचा मैंने, ठीक है? तो Yes, sir. इधर ये बना, इधर यहाँ पे ये बना, तो दोनों ही पॉइंट पर अगर हम देखें, मैं पॉइंट भी ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों ही पॉइंट पर अगर हम देखें, so they are same side, they looks like same, right? Yes, sir. So those are known as corresponding। अगर इसका corresponding मैं खोजूंगा, ये ब्लैक कलर एंगल का, तो इसका corresponding ये होगा, right? Yes, sir. तो corresponding 1 है और 5 है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 70। कोई प्रॉब्लम? No, sir. 5 का उल्टा कौन है? 5, sir, 7.
तो क्या हो जाएगा 7b। 70 degrees. अच्छा 5 और 6 में कोई रिलेशन है क्या? 5 and 6. Yes, sir. They're बोलिए। adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स मतलब Uh, दे मेक्स 180 राइट। yes, sir. सो 570 है तो 6 कितना हो जाएगा 110। Yes, sir. और एंगल 8 कितना हो जाएगा 110। Yes, sir. अब एक चीज देखो, एंगल 4 कितना था? एंगल 4 कितना? सारे एंगल्स निकल गए अब। Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. एंगल 4 कितना है? Angle 4. 110। 110. एंड एंगल 6 कितना है? Angle 6. 110। कैन यू सी दैट? Yes, sir. सो आर दे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? Yes, sir. दिख रहा है यहाँ देखो, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? Yeah, sir, I remember. हाँ Sir, yes, sir, I remember. ओके। नहीं, मैं कहने का मतलब है कि चाहे जैसे भी बनाओ, जो रूल्स हैं वो रूल्स के तहत सारे एंगल्स इस तरह से आएंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो? No, sir, no, sir. ओके, क्या हुआ, कहाँ ध्यान है? No, sir. It's just that it's lagging a little bit. ओ ओके ओके। अच्छा आप एक चीज और मुझे बताओ, आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप वो नोटबुक में नोट करते हो कहीं और नोट कर रहे Yes, हो? sir, I write it in the notebook. ओके ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ठीक है? सेम टाइप प्रॉब्लम, सो यू कैन ट्राई दिस वन बाय योरसेल्फ, मैं हेल्प नहीं करूंगा। कैन यू ट्राई दिस वन? देखो इसने बोल क्या दिया, एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इन रेशियो। किस रेशियो में है? 5:4। 5/4. सो अगर मैं देखूं, सो एंगल 2 को मैं मान लूं 5x और एंगल 1 को मान लेता हूं 4x। एंड व्हाट्स दे have they some relationship here? Have they some relationship? Yes, sir. What? They makes 180, right? Yes. So they makes 180. So I can write it down here. Angle 2 plus angle 1 is equals to 180 degree. So this becomes 5x plus 4x is equals to 180. So makes how much? 9x, right? Yes, sir. So 9x is equals to 180. So x will be how much? 20. Yes, sir. So x is 20 का मतलब ये कितना हो गया 100 और ये हो गया जी 80। तो अब आपको एंगल 2 मिल गया 100 और एंगल 1 मिल गया 80। दो एंगल मैंने बता दिए, बाद बाकी मुझे एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8 बताओ क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा। कैन यू डू? Yes, sir. ओके चलो आप वर्कआउट करो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे बताओ जो लास्ट प्रॉब्लम किया था ना, और जो रूल्स मैंने बताए हैं वही रूल्स सब अप्लाई करके बनाना, आराम से बन जाएगा। देखो पहले जैसे इस क्वेश्चन में आता है ना ऐसे, तो सोचो कि उल्टे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं, उनको निकाल लो पहले। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. वन के अपोजिट कौन है? Opposite to 1 is 3, sir. तो 3 कितना हो जाएगा बताओ? 1 कितना है? Sir, 180 निकाल रखा है ना आपने, 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। हेलो? yes, sir. Yes, sir. 1 ऑलरेडी हमारे पास 80 डिग्री निकला हुआ है ना, Yes, sir. तो 3 कितना हो जाएगा? 3 विल बी आल्सो 80 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली Yes, अपोजिट sir. It एंगल। will be equal to 1 because it's vertically opposite. Right, okay. Now angle 4 is equals to which one? Sir, angle 2. Angle 2. So angle 2 is how much? 100? 100. Yes, sir. 100 degrees. तो निकल गया ये। Yes, sir. अब एंगल 5 किसके इक्विवेलेंट है बताओ? Sir, angle 5. यस, मैं नहीं बताऊंगा। Sir, angle 5 will be equal to angle 1. गुड,
And what are they? Sir, angle 1 is equal to 80 degrees, so angle 5 will also be 80 degrees. Right. Okay. Fine. That's great. So we can write down here. So angle 5 is also 80 degree. What about 6? Six. Sir, 6 will be equal to 100 degrees, as 2 is equal to 100 degrees. Okay. Fine. So here angle 6 will be equals to what? 2. So that is going to be 100. Okay. 7. 7. Sir, 7 Yes. will be equal to, sir, 6 is equal, so 7 will be equal to 80. 7 is equals to 80. Why? What is the reason? 7 Sir, 80 because क्यों? हाँ बताओ. 6 is equal to 100. 6 is equals to 100. ठीक है. तो 7. 7. Sir, 7 will be equal to 80. Okay. Fine. And आप ये भी बोल सकते थे कि 5 का उल्टा है. Right? Yes, sir. What about the 8? 8 will become here 100. कोई problem? Yes, sir. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. So just give me a moment. Okay. Give me a second, please. Uploading the problem. ये आपने कर लिया तो आप एक काम करो. चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है. इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करने की कोशिश करो. मैं इस क्वेश्चन को ना एक काम करता हूँ, 2 पार्ट में देता हूँ आपको. ओके. होल्ड अ मोमेंट. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. ओके. मैं ये फिगर इनलार्ज कर देता हूँ. कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस? एक बार ट्राई करो. नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा. Yes, sir. गो अहेड.
Yes, sir. Done. Okay. So explain me what is the value of x you got here. Sir, in this problem, Hmm. sir, first we had to find other values, sir. Okay. तो बताओ क्या क्या फाइंड किया आपने? Sir, like in we could find out that B, F, and A, B, E are equal to 180 degrees. Okay. Then So then, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं. sir, I found the value of x as 40. 40 आया. अच्छा Yes, रुको sir. मैं चेक कर लेता हूँ. तो ठीक है 40 करेक्ट है. आपने जैसे बनाया हो मुझे नहीं पता. आई विल एक्सप्लेन. कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? Yes, sir. How? Because we know very well this and this is parallel. So this will behave as a transverse, right? Yes, So sir. if it is transverse, so we can say this green angle and this one is what? Same side Yes, sir. interior. Same, same. Same side interior. So same side interior makes how much? 180? Yes, sir. So can we make it 60 degree? Yes, sir. अच्छा. Similarly, अगर आप देखो तो this side, this makes 100. So this makes how much? Same way. ये और ये पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्स हो गया, राइट? तो ये कितना बनाएगा? दिस विल मेक 80 आल्सो, करेक्ट? Yes, sir. सो अब ये पूरा ही ये क्या बनाएगा? 180. तो पूरा 180 बनाएगा. सो यहाँ पर ये हो गया जी 60, ये हो गया जी 80. सो दिस विल मेक्स व्हाट? 40 डिग्री. Yes, sir. आपने ऐसे ही किया है? Yes, हाँ. sir. Similarly. ओके. नहीं करना ऐसे था बेसिकली. ऐसे करते आसानी से निकल जाता. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट वेल ट्राइड. हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ओके. Yes, sir. तो गिविंग यू वन मोर. जरा इसको ट्राई करके देखना कि कैसे बनाओगे. मैं काम करता हूँ. मैं ये फिगर आपको दे रहा हूँ. कैन यू सी द फिगर? Yes, sir. और आपके हिंट के लिए मैं ना एक काम करता हूँ. देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि दिस लाइन is parallel to this. It is Yes, sir. given that, right? Yes, sir. लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं they make something here. These are transverse. लेकिन ट्रांसवर्स किसके साथ बना रहा है पैरेलल? कुछ है क्या पैरेलल हमारे पास? अभी नहीं है, right? Yes, sir. Yes, sir. So at the point E we will make what? We will make a parallel line. Parallel. At the point E what we will make at? Parallel. पैरेलल लाइन. थोड़ा सा टिल्ट हो गया बट आप इसको पैरेलल समझ लेना. ओके. Yes, sir. लिटिल टिल्टेड एंड आई विल मेक इट. अब ये देखो ये थिकर हो गया. Yes, sir. अब ये पैरेलल लाइन हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने नाम दे देते हैं एम एन. वी हैव ड्रॉन एम एन एज अ पैरेलल. तो Yes, sir. मेरे ऑरेंज लाइन देख रहे हो आप? ऑरेंज लाइन विल बिहेव एज अ ट्रांसवर्स. Yes, sir. तो ट्रांसवर्स हो गया. अब देखो Yeah. यहाँ पर ये एंगल और 50 एंगल में कोई रिलेशन है क्या? चेक इट. AB and MN are parallel. AB and MN are parallel. This is transverse, so the angles are what? Alternate. Alternate interior angles. So they will be equal. Yes, sir. So this will become how much? 50. Yes, sir. अच्छा good. अच्छा अब एक बात बताओ. मेरे इस 100 में और इस एंगल में कोई देखो ग्रीन एंगल मैंने शो किया है यहाँ पे. रिलेशन है कुछ वहां पे? कुछ No, sir. कुछ तो होगा ना. Uh, They are same side interior angle. yes, sir. So they make 180. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री. 80 degrees. और ये इज इट मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. Straight line. तो ये 50 plus x plus 80 makes what? Makes 180. Yes, sir. X180. तो ये कितना हो जाएगा बता दो?
180 माइनस minus 50. हाँ Sir, 180 minus 130. yes, so answer will become how much? X value is 50 degree, right? Yes, sir. तो इसको जरा नोट कर लो कैसे कैसे बनाया हमने. Done. Yes, sir. Okay, so don't worry, I will give you the last question, so you need to do it. Uploading. So आप होमवर्क नोट कर लो. 7C में जितना बन सके आप उतना ट्राई करना. Yes, sir. क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बट आई थिंक यू नीड सम मोर प्रैक्टिस इन दिस. तो आप ट्राई करो. आई विल हेल्प यू इन दिस. Yes, sir. ओके, देखो एक ये क्वेश्चन देखो. कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir. In this question they have told that AB parallel to CD, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, करेक्ट? Yes, sir. और ये वाले लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल कुछ बना रहे हैं कहीं जाके, लेकिन किसके साथ पैरेलल करेंगे, ट्रांसवर्सल करेंगे, कुछ पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग एक पैरेलल हम लोग एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे. कैन यू सी? कैन यू सी? Yes, sir. This is the parallel line I have drawn. Any problem in this? No, sir. अच्छा, अब देखो जरा मेरे कलर्स पे ध्यान देना. ब्लू 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 ब्लू, चलो ये ले लेता ऑरेंज. ये 105 है Yes, sir. and this is parallel to this line. So do you think this orange and this orange makes some relationship? टिल्ट करो अपनी गर्दन को थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड तो रिलेशन दिखेगा. आर दे इंटीरियर एंड सेम साइड एंगल? Yes, sir. So interior same side angle means if it is 105, this yellow मतलब मेरे को एंगल ए ई मैं इसका नाम देता हूँ एफ. तो एंगल ए ई एफ कितना बनाएगा बताओ? A, F. हाँ, 105 180 दोनों का सम 180 बनाता है ना. Yes, sir. तो 180 माइनस 105 करेंगे तो कितना बचेगा? 75 बचेगा. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा,
75 ये पूरा येलो, मतलब अगर मैं ये देखूं ये एंगल पूरा 75 हो गया, कोई दिक्कत इसमें? Yes. No, sir. No, sir. ये वाला एंगल कितना होगा फिर मुझे बताओ? अगर 75 टोटल वो था तो ये 25 है, Yes, sir. तो my CEF will be how much? CEF, CEF बोले तो ग्रीन वाला, टोटल 75 था, Yes, sir. तो ये 25 उसमें इंक्लूडेड है। देखो ये पूरा, ये एंगल 75 है ना, ये पूरा एंगल, Yes, sir. इसमें से मैं ये रब कर दूं तो कितना बचेगा? 25 माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा ना। Yes, sir. तो CEF कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. अब CEF और X में कोई रिलेशन है क्या? 50 और X में कोई रिलेशन है? इसमें और इस वाले में कोई रिलेशनशिप है बताओ? Yes, sir. क्या रिलेशन है? Sir, they're 16. No, wait. They They're are same side, they are same side. Yes, sir. same side, so we can write down here X, ये एंगल 50 हो गया, so we can write down X plus 50 is equals to 180. Yes, sir. So X will become here how much? 130. Yes, sir. 130. क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं आपके लिए। आई थिंक यू आर टायर्ड नाउ। ओके, सो आप थोड़ा सा मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा ये। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद यू। ओके, Thank you, sir. ओके, बाय, टेक केयर।